On Saturday, 31st January 2026, in the vibrant city of Bangalore, a beautiful chapter of faith, unity, and compassion unfolds. With the divine blessings of Almighty Allah, a grand mass nikah ceremony is being held, bringing together hearts, families, and communities in a powerful expression of social harmony. This spiritually uplifting event takes place at CMA Grand KG Halli, Bangalore, where 35 blessed couples begin their marital journey together, surrounded by prayers, dignity, and collective support. Organized under the guidance of Shri C.M. Faj Mohammed, Director, HKBK Group of Institutions, Bangalore, this noble initiative reflects a deep commitment to social welfare and community bonding. The purpose of this mass nikah is not only marriage but also to uphold dignity, simplify sacred traditions, and strengthen unity among people. The program begins in the morning at 9:00 a.m. with the graceful arrival of guests, scholars, elders, and well-wishers. Soon after, the atmosphere is filled with peace and devotion through the recitation of the Holy Quran. At 9:30 a.m., the nikah ceremonies commence as 35 couples enter the sacred bond of marriage together, guided by religious scholars and witnessed by elders and families. This collective ceremony highlights the beauty of togetherness, reminding society that marriage is a sacred responsibility supported by faith and compassion. At 11:30 a.m., respected ulema offer special dua and blessings, praying for peace, prosperity, love, and harmony in the lives of the newly married couples. The program continues at 12:30 p.m. with felicitation of guests and meaningful addresses emphasizing values of service, unity, and social responsibility. From 10:00 p.m. onwards, moments of celebration, joy, and gratitude fill the venue as families and community members share smiles and blessings. Organizers warmly invite dignitaries, community leaders, and citizens to be part of this meaningful occasion and to bless the newlywed couples. Such mass nikah initiatives stand as a strong message against social barriers, promoting simplicity, equality, and collective happiness. This grand ceremony is not just an event but a reminder of faith, humanity, and togetherness rooted in the teachings of Islam. From Bangalore, this is a celebration of unity, compassion, and hope for a brighter, harmonious society. हमारे इब्राहिम साहब के फरजंद फयाज साहब और उनके दोस्त जितने भी हैं तमाम मिलकर बहुत बड़ा काम किए हैं, और ख़ासकर जिस एरिया में किए हैं यहाँ तो अशद ज़रूरत है सब चीज़ों की। अल्लाह उनको मुबारकबाद दें दे और उनके कारोबारों में तरक्की दें दे और उनकी तंदुरुस्ती दें दे कि अगर बोले तो जिसके पास कारोबार और तंदुरुस्ती दोनों अच्छे नहीं चलते, उन्होंने ये सब काम में आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे कौम में हर आदमी, हर नौजवान, हर पैसे वाला ये चीज़ों में हाथ डाल के आगे बढ़ के हमारे पास जो दौलत है लोगों की कौम की अमानत कर समझ के ये अच्छे काम, ऐसे शादियाँ और दूसरे चीज़ें बहुत कुछ है, तालीम, दूसरे खतने का प्रोग्राम, ये सब प्रोग्राम रख लेके कौम के जो पैसे वाले लोग हैं वो आगे बढ़ना है। और मैं खासकर फाइज को और उनके साथियों को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको मुबारकबाद दे। माशाअल्लाह, HKBK कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की जानिब से आज शहर में 35 गरीब मेरे भाई और बहनों के जोड़ों के निकाहों का इंतज़ाम किया गया है। आप सब जानते हैं कि हमारे रियासत के CM इब्राहिम साहब बहुत ही खद आवर और बहुत ही अच्छी हिकमत अमली रखने वाले सियासी कायद हैं और वो अपनी बोल में भी बड़े मशहूर हैं। और साथ ही साथ उनके फर्जंद अर्जुमन CM फैज साहब भी सियासत में भी हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही साथ तालीमी खिदमात भी अंजाम दे रहे हैं। शायद आपको ताज्जुब होगा कि HKBK कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 7,000 से ज़्यादा तलबा व तालिबात तालीम पा रहे हैं।
और उसी तरह अब माशाअल्लाह समाजी खिदमत में भी एक कदम आगे बढ़ते हुए गरीब बहनों और भाइयों के निकाहों का आपने यहाँ निज़ाम बनाया है। अल्लाह करे कि इनकी इन फिक्रों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए और जितने भी निकाह हुए हैं अल्लाह उनको सुरखुरू फरमाए और उनकी ज़िंदगी में कामयाबी अता फरमाए, मोहब्बत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर बेंगलोर में एक अजीम शादी महल के अंदर अलहाज सीएम इब्राहिम साहब के शहजादे जनाब सीएम फैज़ साहब की मेहनत और कोशिश और उनकी टीम के ज़रिए से इज्तिमाई शादियों का इजलास मुनक़िद रहा। अल्हम्दुलिल्लाह 35 जोड़ों की शादियाँ हुई। इस तरह का नस्म पहले से भी हो रहा है हमारे शहर में और भी यानी बहुत सारी जगहों पर हो रहा है, लेकिन मैं सीएम फैज़ साहब को और सीएम इब्राहिम साहब को मुबारकबादी देता हूँ कि आपने वो काम किया है जो रहती दुनिया तक इसको याद किया जाएगा। इस तरह की कौम इस तरह के कार्य खैर होने चाहिए। इंसान दुनिया से कुछ लेकर नहीं जाता है बल्कि खिदमत खल्क लेकर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जिन बच्चों की शादी हुई सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, वो और उनके बच्चे आने वाले ज़माने तक हमारे सीएम इब्राहिम साहब और उनके बेटे उनके शहजादे सीएम फैज़ साहब और तमाम हजरात को याद रखेंगे। यही सदका जारिया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 चीज़ें हैं जो मरने के बाद काम आती हैं। एक सदका जारिया है, एक इल्म नाफ़े है, नेक औलाद है। तो आज का जो अमल है ये सदका जारिया है, इसका सवाब रहती दुनिया तक और उसके बाद आखिरत में भी अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा। आज सीएमए फंक्शन हॉल बेंगलोर में 35 इज्तिमाई शादियों का एहतमाम बड़े ही कामयाबी के साथ सीएम फैज़ साहब और उनकी टीम ने किया। उसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं और हमारे क़ायद जनाब सीएम इब्राहिम साहब को भी मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक बाअखलाक फ़र्जंद पाया है। और साथ ही साथ ये इज्तिमाई शादियों की खुसूसियत ये है कि ये इज्तिमाई शादियों के लिए प्री मैरिज काउंसलिंग, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग दोनों का अरेंजमेंट किया गया। और साथ ही साथ ये मैरिज के लिए उलमा इकराम, तमाम मशाइखीन, सज्जदगान की सरपरस्ती में उनकी दुआओं के साथ ये मैरिजेस किए गए। तीसरी बात, ये मैरिज सिर्फ कर छोड़ा नहीं जा रहा है बल्कि ये शादी के बाद में डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज से 50,000 रुपीज भी हर जोड़े को दिलाए जा रहे हैं। तो मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूं कि सीएम फैज़ साहब ये एक नौजवान लीडर हैं। जो नौजवान लीडर्स दूसरे हैं उनको हमें रोल मॉडल बनाना चाहिए सीएम फैज़ साहब को, जो आज उन्होंने ये कारनामा किया है। हकीकत में हर एक नौजवान सियासतदान को इन कामों में आना चाहिए, वरना हम बिजी हो गए पोस्टर्स में, बिजी हो गए दूसरे चीजों में। ये बुनियादी चीजें हैं जो आज कम्युनिटी और सोसाइटी लीडर से एक्सपेक्ट कर रही है। जो लीडर बहुत दूर उसके चले गए हैं, मगर सीएम फैज़ साहब ये काम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा खुशी हुई है। तो लिहाजा उम्मीद है कि हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस और ऐसे सोशल एक्टिविटीज के जरिए से सीएम फैज़ साहब सोसाइटी के और कम्युनिटी के जो बेसिक इश्यूज हैं उसे एड्रेस करेंगे। फिर से उन्हें मुबारकबाद देते हुए मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इनके इस कार्य खैर को कबूल और मंजूर फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि फैज़ जो है बड़े फख्र के साथ आज खुश हूँ। एक बेटा जो है बाप का फर्ज निभाया। अल्लाह ताला हर माँ बाप को ऐसे औलाद दे और दीन दुनिया दोनों को साथ लेके चले। आज इन गरीब 35 घरों को जो बसाने का काम किए हैं, खिदमत खल्क हुकूकुल इबाद में है ये सबसे बड़ी चीज़। और दूसरी चीज़ जो उलमा कराम को लाके उन उलमा कराम की इज़्ज़त अफजाई की, उनकी दुआ जो है आज पूरे कौम मिल्लत के लिए उलमा हक के हाथ से दुआ करवाए हैं। और मैं चाहता हूँ रियासत के अंदर
हर तालुक़े में ये इज्तिमाई काम शुरू हो। इंशाअल्लाह 1980 में मैं इसका फाउंडेशन डाला था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब ये काम पूरे रियासत के अंदर हर तालुक़े में करेंगे। गरीब गुरबा जिसके घर में बेटी पैदा होती हो वो ज़हमत ना समझे बल्कि रहमत समझे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी चहेती जो है दफ्तर फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनके सदक़े तोफ़ैल में अल्लाह तबारक व तआला इस दीन की उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह इस काम को आज क़यामत तक अल्लाह ताला कायम और दायम रखे। ये जोड़ों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद भी फैज साहब ने कहा है कि निगरानी रखेंगे, बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो जोड़ों को यही है कि मियाँ बीवी का हक अदा करे, बीवी मियाँ का हक अदा करे। जो अपना हक अदा कर देंगे तो झगड़ा ही नहीं रहता, इसलिए इनकी बाकायदा देखभाल ही रहेगी। उससे जो है पहले मैरिज काउंसलिंग करके सबको जो है बिठा के बातचीत करके किए हैं। हर 3 महीने में एक बार जो इंशाअल्लाह इनकी पूरी रिपोर्ट लेंगे और उसके ऊपर जो है नजर रखेंगे। सर आपके कजन का ये कहना था कि आपका एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ओपन करने का सोचा है। इंशाअल्लाह वो एक मेट्रो वाले थोड़ी जगह पकड़े हैं, जैसे वो कोर्ट में केस खत्म होता उसी जगह पर शबील इरशाद के सामने 5 एकड़ जगह है, वही गरीबों के लिए इमदाद के लिए एक अच्छी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग कामयाब हुए हैं, अब मेडिकल लाइन में भी कामयाबी अल्लाह ताला अता फरमाए। परवरदिगार से यही दुआ है कि कोई गरीब जो है बगैर इलाज के मरे नहीं, बल्कि फर्स्ट क्लास इलाज जो है उसको हर तबके का, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, हर एक के लिए वहाँ पर इलाज मिले और उसकी खिदमत हो। का भी एक ऐसी सुन्नत है जहाँ आने वाले माशरे में बहुत बड़ी इसमें इसकी एक अहमियत बनती है। तो कोशिश हमारी यही है कि इस प्रोग्राम के मुताबिक हम एक पूरे रियासत कर्नाटक में नहीं बल्कि मुल्क में कि गरीब गुरबा मसाकिन और कई ऐसे लोग हैं जो ये सुन्नत को पूरा करने की कोशिश करते हैं लेकिन कई वजहों से वो कर नहीं पा, तो उसको हम एक अंजाम लाए आज। और दोनों जोड़ों को प्री मैरिज काउंसलिंग फ्रॉम दैट, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम जो जोड़े सेलेक्ट किए गए थे उनको उनके घर तक जाकर घर में वेरीफाई कर कि वे कहीं वो मुस्तहिक है, हकदार है, एलिजिबल है और बालिग है, सब के हिसाब से उनका वेरिफिकेशन कर फिर उनको एक प्री मैरिज काउंसलिंग किया गया, यानी दोनों जोड़ों को दुल्हा और दुल्हन नौशा नौशी और घर वालों को, खानदान वालों को साथ में बिठाकर भी काउंसलिंग की और अलग अलग मजमू में काउंसलिंग की कि आप सबकी जिम्मेदारी क्या है। अगर ये जोड़े सलामत होकर अगर आगे उनका एक मुस्तकबिल बनना है तो कैसे हम उनके साथ देना है, और आने वाले दिनों में जब दोनों जोड़े मिलेंगे तो आपस में इख्तलाफात कुछ ना कुछ रहते हैं, तो अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। तो एक प्री मैरिज काउंसलिंग बहुत ही बेहतरीन अंदाजे से किया गया था और मैं समझता हूँ शायद एक पहली बार एक ऐसा एक प्रोग्राम किया गया है और काफ़ी सारे अहबाब, बड़े बड़े उलमाए कराम उनकी मौजूदगी में और उनकी सरपरस्ती में ऐसा एक दिखा का एक मजमा जमा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए और इनको सब तरीके से उनको नवाजे ताकि वो अपने आगे आने वाली ज़िंदगी अच्छे हिसाब से गुजारे, दुनियावी दीनी सब एक हिसाब से तालीमात भी उनको हमने कोशिश किया है कि उनको दिया जाए। तो बस कोशिश हमारी है, बाकी ऊपर वाला उसको कबूल करे। मैं भी 8 बहनों का एक भाई हूँ, मुझे भी 2 बच्चे हैं। कहीं ना कहीं मैं देखा हूँ कि कितने मुश्किलात का सामना होते है कि एक शादी अगर करना है, और आज जो माशरे में जिस हिसाब का रिवाज बन गया है बहुत ही एक, या तो उसमें बहुत बड़ा एक रिवाज बनकर एक प्रोसेस बनकर हम दिखा दिए हैं कि मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आप देखिए कि अगर चाहे बहुत ही कम, यानी एक सिंपल से सिंपल प्रोसेस में निकाह खानी हो सकती है और ये कोई बड़ा काम नहीं है। तो उसकी एक छोटा एक इलस्ट्रेशन या एक इंडिकेशन कोशिश रही है। तो बस यही है मकसद।
दूल्हा दुल्हन को आप दो लोग मिल रहे हैं, ये ना समझे कि दो निकाह एक 2 मिनट का प्रोग्राम था, लेकिन आप जब दो लोग मिल रहे हैं, दोनों का मिलाप हो रहा है, दोनों खानदान में मिल रहे हैं, और ये खानदान में जुड़ने से आगे आने वाले आप दोनों से एक नई पीढ़ी आगे आने वाली है। तो अगर आप अच्छे इससे अच्छी तरबियत से आप अगर अपना जीना करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी भी आपको एक आइडियल मानकर वो एक माशरा अच्छा बनाएगी। तो ये एक मेरी मैसेज है कि आप दोनों नेक बने, एक बने, और इंशाअल्लाह अजीज अगर आप दोनों नेक हैं तो आपकी आने वाली नस्ल भी बहुत अच्छी रहेगी, और इस नस्ल अच्छी है तो माशरे में, सोसाइटी में एक बहुत अच्छा सा एक अमन रहेगा। अगर घर में अमन है तो सोसाइटी में अमन रहेगा। आती है मेरी टीम है, मेरी HKBK की टीम है पहले, उसके साथ मेरे यहाँ के बेंगलुरु के मजहर साहब है, फिर एजाज भाई है, और ऐसे मेरे HKBK ग्रुप के जितने मेरे स्टाफ है उन सबको मैं मुबारकबादी देना चाह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से, जिस अंदाजे से पिछले 2 हफ्ते में बैठकर सबको एक एक प्रोसेस को उन्होंने चार्ट कर उसमें जो मेहनत लगाई है बहुत तारीफी काबिल है। तो इसका शुक्रगुजार हकदार वो सारे लोग हैं, मैं नहीं। आज 35 कपल्स है, अगले साल आप कोशिश करेंगे कि और कपल्स है 50 या 60 या 70? कोशिश हमारा काम है, हिदायत देने वाला ऊपर वाले के हाथ में। अगर अल्लाह हिदायत देगा और साथ देगा तो इंशाल्लाह 35 नहीं 3000 भी करेंगे इंशाल्लाह।